وہ یکٹک اپنے سامنے کفن میں لپٹی لاش دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دلہام باقی اذیتوں کے سود سیاح کا حساب کرتے ہوئے صحیح روش اپنا لے گی۔ وہ ممتا کا قرض ادا کرے گی، لیکن ایسا یقین توڑ دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے دلہام بخت ٹوٹ گیا تھا۔ ایک بھٹکا آنسو بھیگی پلکوں کے کنارے پہ اٹکا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ دلہام، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ دادا جان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، اور پھر موئز چچا، بابا جان سے ہوتی نگاہ ان کے پیچھے موجود لوگوں پہ پڑی تھی، اور پھر سے کفن میں لپٹی لاش پہ۔ آپ کی ذہنی رو صرف اس خود غرضی میں ہی کیوں بھٹکتی ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھیننا آپ کی ہابی بن چکی ہے؟ کلمہ شہادت۔ میت کو اٹھانے کو 4 کندھے آگے بڑھے تھے، تب کسی نے دلہام کو بھی شاید آگے کیا تھا۔ وہ میکانیکی انداز میں چارپائی کا کونا پکڑتے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کے وجود کا حصہ ہوں، شرمندگی ہے مجھے اس بات کی۔ حویلی کے دالان پہ ٹھہرا دلہام بخت سختی سے کسی سے مخاطب تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ فاتحہ صرف ایک کا ہوتا ہے۔ آپ تو اس داستان میں خود غرضی سے زیادہ کچھ کردار نبھا ہی نہ سکیں۔ وہ خود غرض عورت فاتح بن گئی تھی کیونکہ اس نے دلہام بخت کے یقین کو ہرا دیا تھا۔ وہ ماں تھی اور دلہام کو ان کی محبت آج محسوس ہو رہی تھی۔ پچھتاوے گرنے لگے تھے، باپ کے قاتل کے مرنے کی خوشی منائی یا ماں کے مرنے کا سوگ۔ وہ ارینا کی طرح بے نام موت نہیں مری تھی، وہ تو دلہام بخت کی ماں مرحوم شاہ بخت کی بیوہ ہو کے ایک شانت تغافل سے حویلی سے نکلی تھی۔ انا کے دل پہ بھی بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ خود غرضی کی اس داستان کو آج وہ بند کر کے اپنا نام اس دنیا سے ہٹا گئی تھی، بنا دنیا کو سچائی سے آگاہ کیے۔ امرے کی موت تو بہت اچانک تھی۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ گمسم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کھانا پینے سے بھی منہ موڑ لیا تھا، اور بس دوسرے دن وہ اپنے کمرے میں مردہ ملی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی تھی۔ کفن دفن سے سوئے اب تک کا عرصہ اس نے اس دنیا سے کٹ کے گزارا تھا، ماں سوائے مردوں کے کسی نے بھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس نے اپنا اڑنا بچھونا مردان خانے میں رکھا تھا۔ آج دادا جان اسے زبردستی حویلی کے اندر لائے تھے۔ امراؤ اور بی جان نے اسے آگے بڑھ کے تسلی دینے کو اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے تو خفی سے سر ہلاتا اپنا ٹھیک ہونے کا کہتے فارمیلٹی نبھا گیا تھا۔ انا انگلیاں چٹکتے اسے دیکھ رہی تھی، اسے رہ رہ کے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ یہ درد تو اس نے بھی سہا تھا، لیکن اس وقت حویلی والوں کی نفرت میں وہ اپنی ماں کا غم بھی صحیح سے نہیں منا سکی تھی، اور تب محبت کا سوگ بھی منانا تھا۔ لیکن آج اسے دلہام بخت کی تکلیف اپنے دل پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انا کے قریب نہیں رہا تھا، لیکن انا اس کے قریب رہتے اس کا غم بانٹنا چاہتی تھی۔ ناراضگی اور غم و غصے کا صحیح ان کے درمیان ایک رشتہ تھا، وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے آئے تھے، پر آج جیسے اجنبیت کی دیوار آ ٹکی تھی جسے وہ پھلانگ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جان سکتی تھی کہ اپنے دل کو خود سے بہت دور کر لیا ہے اس نے۔ رمز نے آگے بڑھتے اس کے بازو پہ سر رکھا تو دلہام چونکا تھا، جو شاید اس کے غم میں شریک اپنا یہ جتاتا احساس تھا، اور پھر نگاہ رمز سے ہوتی انا پہ پڑی تھی جس کے پیچھے موسیٰ ٹھہرا تھا۔ وہ سب پر سرسری نگاہ ڈالتے رمز کے ہاتھوں سے بازو چھڑاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اذیتیں بڑھ رہی تھی جن کی حد لامحدود تھی۔ انا نے سوالیہ نگاہوں سے موسیٰ کی جانب دیکھا، وہ نظریں چرائے گیا تھا۔ ایک وہی تو تھا اس کا قریبی جو اس کی ہر کیفیت کے پیچھے محرک سے آگاہ رکھتا تھا۔ دلہام کا ریئیکشن رمز کے لیے بھی تھوڑا آکورڈ تھا، مگر اس کے ذہنی خلفشار کو محسوس کرتے وہ درگزر کر گئی تھی۔ جا بیٹا، اس وقت بیوی ہی بہترین غم خزار ہوتی ہے۔ دلہام کو تسلی تو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ اس کی رضا میں اپنی راضی رہنا ہی مصلحت پسندی ہے، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بی جان نے انا کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوا تھا۔ کمرے میں چھائی گہری خاموشی، انا کا دل ہلانے لگی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھتے ونڈو سے بھاری کارٹن ہٹائے تھے، ستاروں بھرے روشن آسمان سے اس کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ سست روی سے چلتے اس کے برابر آ بیٹھی، دل بنجارا سا ہمک کے اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ لرزتے ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا، اور مکروتی انگلیوں کا لمس مساج کے انداز میں اس کے بالوں میں گھلنے لگا تھا۔ دلہام نے آنکھوں سے بازو ہٹائے اسے دیکھا، جا اس کے لیے فکر انا کے چہرے پہ درج تھی تو پرجوش نگاہیں اس پر جمی اس کے اندر کے رازداروں کو تلاشنے کی کھوج میں تھی۔
कुछ देर इसे खामोश नज़रों से देखते आँखें मूंद ली और उसकी तरफ खिसकते हुए इसकी गोद में रख दिया था। दुल्हाम का ये अमल अना के लिए किसी अनहोनी से कम नहीं था। वो इसके सर में अपनी मखरूतियाँ उँगलियाँ फेरते इसके बालों से खेलने लगी थी। जो हो गया इसे किस्मत का लिख के समझ के कनात नहीं कर सकते आप। चुप का रोज़ा थोड़ा था। दुल्हाम ने पेट के बल लेटते मुकम्मल तौर पर खुद को उसकी पनाह में कर लिया था। वो वाक़ई माँ से बिछड़ा परेशान सा बच्चा लग रहा था। कई सितम ये था कि जिन हवालों से वो एक दूसरे से मेलों का फ़ैसला अपनाए हुए थे, हमेशा वही हवाले इन्हें करीब भी लाए थे। सदाएँ देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए। फिर इसके बाद ज़माने ने मुझको रोन दिया। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियाँ बजाते हुए। फिर इसके बाद अता हो गई मुझे तासीर। मैं रो पड़ा किसी को ग़ज़ल सुनाते हुए। ख़रीदना है तो दिल को ख़रीद ले फ़ौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आज़माते हुए। तुम्हारा गम भी किसी तूफ़ैल शेर ख़ार से है कि ओंघ जाता हूँ मैं खुद इसे चिल्लाते हुए। अगर मिले भी तो मिलता है राह में फ़ारिस, कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए। मैंने सारी ज़िंदगी इन्हें खुद से महरूम रखा। क्या तुम इस अज़ियत का अंदाज़ा कर सकती हो जो मेरे माँ-बाप के बच्चे की होती है? तुम्हें तो सिर्फ़ मुयस्सर है ना। और मैं कमज़ोर लहज़े की थकान पर वो इसे देखने लगी। अगरचे आवाज़ सरगोशीनुमा थी मगर इसकी तवज्जो के धागे मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मबज़ूल थे तो बख़ूबी समझ पा रही थी। मैं थक गया हूँ नज़ियतों का शुमार करते हुए मुझे सुकून चाहिए। एक गहरी साँस भरते हुए उठ बैठा था। अना खामोशी से इसे देख रही थी जो अपने सर के बालों को जकड़े बदहाल बैठा था। अजीब कैफ़ियत थी। पास बैठा शख्स इसका महरम था। इसकी अव्वली चाहत हाथ बढ़ा के वो इसके दुखों का मदावा करना चाहती थी पर जाने क्या चीज़ इसे रोक रही थी। तुम शायद मेरी वजह से परेशान हो रही हो। इसका अंदाज़ बदला था। इंतहाई नर्म अंदाज़ में कहते से अना के हाथ थामे हुए हौले से अपने लबों से लगाए थे। इसका लम्स रगवा जामे सुकून बन के उतरा था। लब इस पे शकन हादसे के बावजूद भी मुस्कुरा उठे थे। सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला था। मैं कुछ दिनों के लिए सबसे दूर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी अनादिल? हद दर्जा याराना था। भला का मान भरा अंदाज़ था इसका। दिल पुरज़ोर अंदाज़ में धड़का था। भला इस अंदाज़ में इनकार की गुंजाइश थी। इसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया था। मेरे सर में दर्द है, क्या तुम दबा दोगी? वो बातों में माइल नज़र आया था और नवाज़ात माँग रहा था जबकि अना वो तो सिर्फ़ इसे सुनना चाहती थी। अस्बात में सर हिला तो गुलाम ने इसके बराबर में तकिया सेट करते सर टिकाया जबकि करवट के बल लेटते रुख इसकी जानिब किया था। दुल्हान ने इसके मोमी हाथ अपने माथे पे रखते गोया मिज़ाही का लफ्ज़ चाहता और आँखें मूंद ली। अनामिक अंदाज़ में इसका सर दबाने लगी थी। दिमाग में इसके पुरसुकून अंदाज़ को देखते वो चाल सा पता जाने क्यों इसके अंदाज़ डरा रहे थे, दुल्हान में मुब्तला करने लगे थे। इसने दुल्हान को इतना बेचैन फिर इतना पुरसुकून कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ था दुल्हान पुरसुकून नींद सो रहा है। अना के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट जब दिखाई कि वो इस पे झुकते इसके माथे पे अपने लब रख गई थी। शायद ये भी महज़ाही का अंदाज़ था या शरीके गम होने का यकीन दिलाना चाहती थी। कुछ देर इसके पसमज़दा चेहरे को देखते हुए बैकग्राउंड से टेक लगा गई थी। अब तो नफ़रत की वजह ही ख़त्म हो चली थी। अब भला अब भी दलाप के वजह से वो नज़रें चुरा सकती थी जिससे दिलो दिमाग के साथ रूह का रिश्ता भी था। मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ। कॉल पे बात करते रम्ज़ की सांसें अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस करती अटकी थी। वो एक झटके से मुड़ी थी। सामने वो दोनों हाथ सीने पर जमाए इसे देख रहा था। पापा भाई वो, मैं कब से आपको कुछ बताना चाह रहा था बेटा। उस पुरसुकून से अंदाज में बोला तो रम्ज़ को गोना को सुकून का एहसास हुआ कि इसने कुछ नहीं सुना था। जी भाई, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे सजानी चाहिए थी। बाबा जान और पी जान की ख्वाहिशें के फरहान के फ़र्ज़ के बाद वो आपको भी अच्छे हाथों में सौंपे जिसके लिए हम सब काफ़ी वक़्त से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। दिल्हाम बक ने अपनी बात में वफ़ा लिया, वहीं मरम्स की साँसें भी अटकी थीं। वो क्या कह रहा था समझना इतना मुश्किल नहीं था। मैं जानता हूँ कि शायद ये सब इतनी जल्दी कबूल करना काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन इसी हफ़्ते तुम्हारा निकाह है मेरे दोस्त के साथ। मम्मा की वजह से निकाह इंतहाई सादगी से किया जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हें मेरे किसी फ़ैसले पर एतराज़ नहीं होगा क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार मैं काफ़ी लंबे अरसे से इन्हें करवा रहा हूँ। बिना इसके पसीना-पसीना होते चेहरे पर नज़रें किए हुए अंदाज़ में बोला था। जब हम की रील की हड्डी तक में एक शदीद सर्द लहर दौड़ी थी। वो नज़र झुकाए दिलाम बख्त के जूतों पर निगाहें जमाए खड़ी ठहरी थी। कुछ कहना है तुम्हें?
दिल्हम ने इसके सर पे हाथ रखा था। रम्स का सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला था। गुड, फरहान और दुरैद को भी इस बारे में आगाह कर देना। दिल्हम की बात में इसके दिल की धड़कन मुंतशिर हुई थी। इसे बहुत कुछ याद आ रहा था हिना वालों से। वो भाई फरहान और दुरैद तो, और हाँ, ओ हाँ, शायद वो लोग नहीं आ सकेंगे, सेल ऑफ है दुरैद का, तभी शायद मम्मा के बारे में जान नहीं सके वो लोग। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? फरहान से तुम राब्ते में थी ना? रमज़न नफ़ी में सर हिलाते इसे अपने और आखिरी राब्ते के बारे में बताया तो इसकी बात समझते वहाँ से चला गया। जबकि रम इस पे तो कोई नाकानी आफत आई थी। वो बेड पे दराज हुई। इसे लग रहा था शायद दिल्हम को फरहान और दरियत का एड्रेस मालूम होगा, लेकिन वो इस पे अचानक निकाह का फैसला, भला वो कैसे निकाह पे निकाह कर सकती थी, और हकीकत वो बताना भी तो मुश्किल अमर था। ये क्या होने जा रहा था? दिल्हम वक्त के फैसले से पीछे हटना तो कभी घर वालों को नहीं आया, और यकीनन इसके फैसले में सब साथ थे। ओ खुदा, तू ही मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? आंसू मोती बन के बिखर रहे थे सब। जब कुछ सोचते वो उठ बैठी थी। रात गहरी थी, इसे मूसा से बात कर लेनी चाहिए। वो दबे कद में एक मोहतात निगाह हर तरफ डालते इसके क्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। जब छत पे ठहरे दल्हाम ने इसे देखते अजियत से आंखें मूंद ली। इतना आसान नहीं था किसी के दामन को एक साथ करना, लेकिन कुछ फैसलों को वक्त के सुपुर्द कर देना यही बेहतर होता है। वो तेजी से नीचे की तरफ आया था। मूसा जो अभी लेटा था रम्स को क्वार्टर में आते देखकर उठ बैठा था। रम्स बीबी, आप इस वक्त, मेरा मतलब है इस वक्त तो सब जाग रहे होंगे। अगर किसी ने बकवास बंद करो मूसा, तुम जानते भी हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। इसी हफ्ते मेरा निकाह करवा रहे हैं भाई अपने किसी दोस्त से। रम्स ने मूसा पे जैसे कोई राज मुनकशिफ किया तो वो चौंका था। ये क्या कह रही हैं आप बीबी साहब? अगर दिल्हाम सर का ऐसा कोई प्लान होता तो वो मुझे ज़रूर बताते, जबकि वो तो कल ही अना बीबी के साथ मरी वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और अगले कई दिन तक इनके पास सर उठाने की फुर्सत नहीं। ऐसे में कोई फ़ैसला लेना ही नामुमकिन है। मूसा का माथा टंका था, लेकिन वो क्यों झूठ बोलेगी, समझ से बाहर था। इसकी निगाह बार-बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। नैना मूसा, सच में भाई अभी कुछ देर पहले ही मेरे कमरे में आए थे, और रम्ज़ की बातों को ब्रेक किसी की आमद से लगा था। वहीं मूसा भी बौखलाया था जब एक ज़ोरदार थप्पड़ रम्ज़ को पड़ा था। दूसरी लम्हे वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन बोस होने को थी जब मूसा ने इसे थामा था। दिल्हम की गैर बरसता बरसाती निगाह इस पे गड़ी तो वो शर्मिंदा सा इसे छोड़ते तो कदम पीछे हटा था। भाई, वो बकवास बंद करो, तुम्हारी यह मौजूदगी तुम्हारी पस्त ज़हनियत का पता देती है। वो इसे कलाई से थामे गरजदार आवाज़ में बोला था। मूसा यकटक दिल्हम वक्त को देख रहा तो इसने अपनी चाल की बसात बिछाते रम्ज़ को सज़ा के तौर पे यहाँ भेजा था। वो इससे आगे वो क्या करने वाला था कुछ भी समझना मुश्किल था। अन्ना की आँख खुली तो वो खाली दामन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। इसे याद आ रहा था कि वो दिल्हम के हमरा ही पुरसुकून सी सो गई थी। घड़ी की तरफ निगाही तो रात के 12 बज रहे थे। शदीद भूख के एहसास से उठ बैठी थी। दिल्हम न जाने कहाँ चला गया था, जबकि बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे रहने की वजह से फट्टे अकड़ने लगे थे। वो कमर सीधी करके करने को सीधा लेटते छत को घूरने लगी थी। दिल्हम की खामोशी इसकी गोद में रखा सर और फिर अब जागते इसका गायब हो जाना अन्ना को उदास कर रहा था। काफ़ी देर बेचैन करवटें बदलते जब किसी पल का सुकून आया तो वो इसकी तलाश में बाहर की तरफ पड़ी थी। हर तरफ फूका आलम तब तमाम मेहमानों के जाने के बाद आज सबको मुकम्मल रेस्ट का मौका मिला था। कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ बढ़ी थी। अगर कोई मुलाजिम होगा तो इससे तालाब का पूछ लेगी। जब अचानक ही अपनी पूछ पे हवेली के तमाम दर खुलते हुए महसूस हुए थे। दादाजान दादाजान की निगाह इस पे पड़ी तो चंद सेकंड पाँव में ज़मीन पे जमे थे, फिर इसे इग्नोर करते जल्दी से हवेली से कुछ दूर बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़े। अन्ना कुछ तजज्जुब का शिकार थी। इसी टाइम इनका यूं जाना होला रहा था। वो ना आगे बढ़ पा रही थी ना ही पीछे, जब सामने के मंजर ने इसके दिमाग की चौलें हिलाती थी। बिलखती हुई रम्स का हाथ पकड़े दलाम हवेली में आया था। उसके पीछे झुके शाने लिए दादाजान और बाबा जान। कुछ देर में मंजर बदला था। छोटी चच्ची रम्स को पीटते अपनी तरबियत को कोस रही थी। वहीं मर्द हजरात एक दूसरे से निगाहें चुरा रहे थे। दिल्हम अपने कमरे में गुम हो चुका था। वो चौखट से टेक लगाए माची में खोई थी। इसे रम्स में अरीना नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ तो साजू का जाल बुनने वाली अमरें नहीं थी, फिर क्या रम्स ही बहकी थी। सब इसे कोसते लानते मिलाते बेचते कमरों का रुख कर चुके थे, जबकि छोटी चच्ची इसे खींचते कमरे में लाई थी। इसका सेल फोन रास्ते में कहीं गिर गया था। इसे कमरे में लॉक करते इस चीज़ की अच्छी तरह तसल्ली की थी कि जज्बातियत में वह कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। वो दलाम की तलाश में आई तो इसे कमरे की बालकोनी में सिगरेट फूकता नजर आया था। ये सब क्या है दलाम? अन्ना की आवाज़ पे वो पलटा था। क्या है? अंदाज मुतमईन था, लहजा हद दर्जा बेपरवाह। रम्स भला मूसा
मैंने शायद बताना था कि कल सुबह हमें मरी के लिए निकलना है। मेरी वहाँ चंद एक अहम मीटिंग्स है, इसके अलावा भी कुछ केस है जिन्हें स्टडी करना है। वो सिगरेट से मसलते अंदर आया था। अना उलझी सी इसके पीछे आई थी, कुछ खाने को ला दूँ? वो बिस्तर पे दराज होते हुए बोला था। जब अना को झटका लगा, घर में इतना सब कुछ हो गया, वो इतना मुतमईन कैसे हो सकता है भला? अगले 30 मिनट में वो इससे बेहद नॉर्मल रहा था, जो इसे खाना सर्व कर चुकी थी। सोने से पहले इसने अपना मोबाइल उठाया था, फिर कुछ देर बाद इसे वापस रख चुका था, जबकि सोते वक्त में फिर से तकिया इनके दरमियान था और वो अपना रुख मोड़ चुका था। इसकी गज अदाई अना के दिल में आग लगा गई थी, पर वो खुद पे जब्त किए बेएतबार मौसम जैसे शख्स को सोचते सोचते सो गई थी। अगली सुबह काफ़ी हंगामा खेज थी। रम्स घर पर नहीं थी। अना के लिए जो सबसे हैरान कुन था वो दलाम का रवैया, जिसने कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद इसे अपने साथ लिया और सफ़र को निकल पड़ा था। जबकि हवेली वालों को उम्मीद ये ही दिया था कि वो सबको यही बताएंगे कि रम इसके हमरा बरी में है। साथ में ये धमकी भी दे डाली कि जैसे ही वो रम्स अब मूसा को तलाश करेगा, इन्हें मौत के घाट उतारने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। फरहान की कुटी-कुटी चीखें पे वो इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था, जो गठरी सी बनी खुद में समटी जा रही थी। ज़मीन हज़ारों लम्हे में लानत की, तो वो लम्हों में इसके करीब पहुंचा था। वहीं खुद पे झुकता साया फरहान को अपनी मौत नज़र आ रहा था। शीशे फरहान देखो, ये मैं हूँ दुरेद। वो अपने हिसार में जिगरते हुए बोला, तो जो अपनी सुध-बुध खोने लगी थी। जान बशकती आवाज़ को सुनते फ़ौरन से इसकी पनाहों में कैद हुई थी। तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे दुरेद? वो लूसीफर ममा शश कुछ नहीं है फरहान, देखो मैं हूँ ना यहाँ, मेरे होते हुए किसी को भला कहाँ ज़रूरत है जो तुम्हें यहाँ से ले जा सके? वो उसे खुद में समय टपकने लगा था, जिस इसकी आवर्ती से वहशत का शिकार कर रही थी। तुम थक गए ना मुझसे दुरेद? तुमने मुझे छोड़ दिया था मैं सायका। ये कहाँ मुमकिन है कि कोई सांस लेने से थक जाए, ज़िंदगी से थक जाए, जब इतना हसीन महबूब हर लम्हा आपके साथ हो। वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोला था, तुम मुझसे नाराज़? अगर शौहर को इसके जायज़ हक से महरूम रखोगे तो क्या नाराज़ होना नहीं चाहिए मुझे? वो उसे प्यार भरी घूरियों से नवाजते बोला था, जबकि इसकी बात को गहराई को समझते इसका चेहरा ब्लश करने लगा था। यही चीज़ मुझे तुमसे दूर रहने पे मजबूर करती है। पास रहते कोई ख़ता सर्ज़ हो गई तो तुम्हारी नाराज़गी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मेरे नाराज़ रहने में ही भलाई है। वो मुँह फुलाते खड़ा होने लगा, जब बेख्तियार वो उसका बाजू थाम गई। मत जाओ मुझे डर लगेगा। फरहान का मासूमाना अंदाज़ ज़ुरैद को मुकम्मल ज़ेर कर रहा था। मैं बहुत पास रहना चाहता हूँ फरहान, तुम्हारी सारी फ़िक्रें समेट लेना चाहता हूँ, एक बार भरोसा करके देखो। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए बेड पे ही घुटनों के बल इसके सामने बैठा था। फरहान की पलकें हया के मारे बाहर से झुकी थी। वहीं जुनैद के इख्तियार तमाम हुए थे। वो इसे ज़रा-सा धकेलते, तकिए पे गिराते इस पे झुका था। फरहान का दिल अपनी धड़कनों के सुरों में उलझा, तो आँखें जुनैद के बदले अंदाज़ देखते बंद हुई थी। आँखें खोलो फरहान, प्लीज़ एक बार इस सच का सामना करो, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। इसके कानों की लौ को उँगलियों की पूंछ से छूते दुरैद ने पुरज़ोर अंदाज में कहा। फरहान ने लरज़ती पलकें वार की थी। इश्क के शोले को भड़काओगे, कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओगे, कुछ रात कटे। दुरैद की जानलेवा सरगोशियाँ ऐसे निढाल करने लगी, तो उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। जब तक आजे हैं तेरी चाहतों के कलियों की महक, मस्तार लेने का शौक भी है तो कली के गुल बनने का इंतज़ार भी। इसके लबों पे शरीर मुस्कुराहट से घेराव किया था, वहीं वो इसे अपने लम्ब से नवाज़ते इस रिश्ते को तकाज़े को पूरा करने लगा था। हसीन शब की सुबह इसे से भी बढ़कर हसीन थी, जब इसकी आँख खुली। हर रोज़ की तरह कुछ उबाम न आते, वो भूल चुकी थी अपने माज़ी को, अपने ख्वाब को। अगर कुछ याद था तो गुज़री शब की हसीन साँतों में रस घोलते लब, जो अभी भी मुकम्मल नींद में होने के बावजूद मुस्कुरा रहे थे। फरहान ने इसके सीने से सर को सरकाते हुए तकिए पे अपना वज़न डाला और बग़ौर से देखने लगी। अगर मैं कर लूँ इरादा मोहब्बत ओढ़ लेने का, करो वादा मेरी शॉल पे तारे तुम टाँकोगे। नक से तराशी गई बेर और बिखरे बालों से ढकी सफ़ेद चमकती पेशानी, रोशन आँखें बंद होने के बावजूद भी ज़िंदगी का यकीन दिलाने को काफ़ी थी। वो तो हर लम्हा मुहाफ़िज़ बन के इसके साथ था, जिससे फरहान बख्त की इस दात मुकम्मल हो रही थी। इसे सोचते लब खुले थे, जब अचानक से वो दराज़ सरापा इस पे साया फ़कन हुआ था। वो बौखलाई थी।
सच से बताओ क्या सोच रही थी? यकीनन मेरे बारे में ही सोच रही होंगी ना। दुर्वक़्त जो खुशफ़हम था या फिर इसके लबों की मुस्कुराहट के राज से बख़ूबी आगा तभी तीर अंदाज़ी का शुक्ल अपनाया था। फरहान ने खुद को कम्फ़र्ट में छुपाने की ज़रूरत की थी। वो दुर्वक़्त की म मखनी म म्या मानी ख़ैज़ निगाहों को दिन के उजालों में सहने की ताकत नहीं थी। मुझे कोई और काम नहीं है, क्या मैं यही सोच रही थी हम घर कब जाएँगे तुम्हें जगा के पूछ लूँ। फरहान की नज़र पे इसने बूझ गया है अपना फ़रकंडी झूठ भला कौन भूल सकता है। फिर तुम मुस्कुराई क्यों? तो रेत की ज़रा इसे परेशान करने लगी थी। तो क्या तुम अब मेरे मुस्कुराने पे पाबंदी लगाओगे? वो शौक थी। हाँ, ना अगर तुम मुस्कुराहट मेरी वजह से थी तो फिर तो ओके है वरना इसने होठों का कोना दबाए जो मैंने अंदाज़ में बात अधूरी छोड़ी। जबकि इसकी जानिब मज़ीद पेशकदमी की तो फरहान को इन जान लम्हों में से जान छुड़ाना मुश्किल हुआ था। जुनैद बख्त को पहली फ़तह महसूस हुई थी इसका एतबार जीतना इसके करीब जाना। अनादिल एक जानी-पहचानी आवाज़ पे वो चौंकी थी। सामने अपने छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो ठहरा था। "जी तुम यहाँ कैसे? अगर दिलाम को पता चल गया तो वो" "सुनो मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना था। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो इस कैफ़ेटेरिया में जहाँ हम पहले मिले थे? दिलाम बख्त की बीवी होने की हैसियत से तुम्हारे लिए इसकी ज़ात के हर राज से आगाही ज़रूरी है।" आर्यन बेचैन-सा बोल रहा था। अना कुछ देर इसे देखती रही थी और इस बात में सर हिलाया था। शायद वही इसकी उलझनें सुलझा सकता था। वो किसी हवा के झोंके की मानद गायब हुआ तो अना अपने गाल थपथपाते खुद को रिलैक्स करती घर के अंदर आई थी। इन्हें यहाँ आए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। शाज़ो ने आसिफ दिलाम की सूरत देखने को मिल रही थी। तभी वो चहलकदमी को करीबी पार्क में चली जाया करती थी जहाँ अचानक ही आरजे से सामना हुआ था। दिमाग में पहले ही हज़ारों उलझनें थी जो आरजे ही सुलझा सकता था। एक तरह से अच्छा था वो खुद ही सामने आ गया था। सोचों के ताने-बाने बुनती वो घर आई तो सामने दिलाम की गाड़ी मौजूद थी, मतलब कि वो घर में मौजूद था। अगर आरजे की बात मालूम पड़ गया तो दिल सारा ज़रा-सा सहमा था लेकिन खुद को मजबूत करती हुए तेज़ी से अंदर आई थी। कमरा खाली था लेकिन शावर की आवाज़ से अंदाज़ा होता था वो फ्रेश हो रहा है। सेल की पिप पे वो थोड़ा चौंकी थी जहाँ दलाम के नंबर पर अनगिनत मैसेज की भरमार थी। वो बेयकीनी से दलाम का सेल हाथ में थामे इस पे दर्ज अल्फाज पढ़ रही थी जो डिजिटल धमाके से कम नहीं लग रहे थे। वो इतनी गुमसुम थी कि इसे दलाम की आमद पे भी नहीं चौंका पाई थी। क्या हरकत है, मैनर्स भूल गई हो तुम, बिना परमिशन किसी का सेल नहीं उठाते। तकरीबन सेल को इसके हाथों से खींचते वो गुस्से में बोला था, किसी का नहीं बल्कि मेरे शौहर का सेल है, इस नाते मुझे मुकम्मल हक है इसकी चीज़ इस्तेमाल करने का। वो ठठोई से बोली जिसके चेहरे पे शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे। ओह! तो शौहर भाई देवे शौहर पे ताक़ुब तो उससे माने के अलावा भी कोई हक व फ़र्ज़ होते हैं कि नहीं? सेल की स्क्रीन पे एक मुतमईन निगाह डालते समय हिस्ब आदत मूड बदला था, स्क्रीन लॉक थी। वो दिल्हम की फ़िज़ूल गोई पे इसे देख कर रह गई थी। अनबिलीवेबल होंठ चबाते हुए इसने कहा और वहाँ से हटना मुनासिब समझा पर वो ऐसा हो नहीं पाया था। कुछ पूछा है मैंने? इश्तियाक निगाहें इस पे जमा इसके करीब हुआ था। अना को इसके बदले अंदाज़ हैरान कर रहे थे। इमली की डेथ के बाद वो कोई और दलाम था जिसे शायद अना जानती नहीं थी। कल एक सेमिनार अटेंड करना है, मिस्टर एंड मिसेज़ दलाम बख्त को बी रेडी फॉर इट। बात करने का बहाना दरकार था। दोनों हाथ की पैंट की जेबों में घुसाए वो बखौर से देख रहा था। जिसकी उलझी लटें चेहरे का इज़हार किए हुई थी। सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ती नाक और रुखसार दलाम को ज़रा शरारतों पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन कभी फासले बनते, कभी घटते थे, फिर अभी तक सही मंज़िल का तयन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं जाना कहीं। वो रुख मोड़ गई थी, दिल की धड़कनें तेज़ थीं। अगर वो कल आरजे से ना मिली तो शायद बहुत कुछ मिस हो जाता। हाँ, हाँ, राइट, तो मैं भी प्रोग्राम कैंसल कर देता हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हमने साथ में वक़्त ही नहीं गुज़ारा। कल की शाम तुम्हारे नाम। वो इतनी जल्दी इसके एतराज़ को मानते हुए अपना अगला प्लान बना किया तो ऐना के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। इसे जाने क्यों यकीन हो रहा था कि वाक़ई इसके और आरजी की मीटिंग से आगाह है। दलाम बख़ूर इसके चेहरे के उतार-चढ़ाव को देख रहा था। खामोशी तवील हुई तो अना इसे इग्नोर करती, ग्लास डोर साइड पे करती बाहर बालकनी में आई थी। ठंडी हवा का झोंका दिमाग से टकराया तो बहुत कुछ सोचने लगी थी। सामने दरख्त तेज़ी से सफ़ेद की चादर उड़ने लगे थे। दुल्हन ने कुछ देर इसकी हरकतों को देखा फिर गहरी सांस हवा के सिप करते
देखते اس کے پاس آیا تھا، جو غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے دور تک کچھ کھوج رہی تھی۔ دلہم بخت نے اپنے کشادہ بازو وا کی اور اس کی پشت سے اپنے سار ملے تو گڑبڑائی تھی، جبکہ اس نے انا کے کندھے پہ ٹوٹی ٹکائی کا مشغلہ اپنایا تھا۔ اسی لمحے دل چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت بات کروں اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، کبھی دل چاہتا ہے پرانی انادل بن کے سامنے آ جاؤں، گلے لگوں، ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، لوٹ آؤ انا اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے۔ سرگوشی میں ڈھلے لب انا کے کانوں کی لو کو چھوتے پوری شدت سے اس لمحے کی گرفت میں لیے گئے تھے۔ آنکھ نم ہوئی تھی، اتنا آسان نہیں سب بھول جانا، میرے لیے ماضی کو بلانا۔ ایک سستی سی لبوں سے نکلی تھی، تم غلط ہو نادر، ان چیزوں میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم بس مجھے دیکھو، مجھے سوچو اور میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دلام بخت، غلط کو صحیح لکھنے سے وہ صحیح تھوڑی نہ ہو جائے گا، جو میں غلط ہوں آپ کی نظر میں شاید ہی کبھی اچھی بن سکوں۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنا احترام کس مقام پہ کھویا ہے، لیکن یہ احساس بڑا درد دیتا ہے کہ یہی احساس مجھے بھی درد دیتا ہے کہ میں اپنا آپ لٹا کر بھی تہہ دامن ہوں۔ اس شراب کے پیچھے مت بھاگو انادل، جہاں سے وقت کی دھول کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ بتا دیں سچ کیا ہے؟ ایک لمحوں کو آپ نے سوچا تھا، آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ذات کے پخیزے اڑا دیے تھے، میں جب جب یاد کرتی تو اس تھپڑ کی جلن انا کی ہچکی بنتی۔ دلہام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ سوری۔ دلہام بخت کے لبوں سے نکلا ایک لفظ اس کی ہستی کا مان رکھتا تھا۔ انا نے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، دلہام کے لب اس کے ریئیکشن پہ مسکراہٹ میں ڈلے تھے، پھر اس نے ذرا سے اس پہ جھکتے اس کے لبوں پہ بوسہ دیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، جبکہ وہ کچھ لمحوں کی شرارت کے بعد پیچھے ہٹ چکا تھا، پر متبسم نگاہیں ابھی تک اسی پہ ٹکی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چڑ کھاتے بولی۔ دلہام کے انداز کافی مشکوک تھے۔ وجہ خاص ہے کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، بے فضول کے جھگڑوں میں ہم دونوں نے اپنا کافی وقت ضائع کیا ہے، سمجھو ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دلہام کا انداز حد درجہ نارمل تھا، یہی چیز انا کو ایب نارمل لگ رہی تھی۔ تم بتاؤ کیسے معافی ملے گی؟ وہ پھر سے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا، انا کی نگاہیں اپنے ہاتھوں پہ جمے اس کے مضبوط ہاتھوں پہ تھی۔ مجھے اس چیز کا محرک جاننا ہے، مجھے آرزی کے بارے میں جاننا ہے، وہ جو ان لمحوں کو بہت خاص بنانے کے لیے مصر تھا۔ اس پہ انا کا سوال اسے منجمد کر گیا تھا۔ اس پل میں مجھے صرف اپنے بارے میں بتاؤ، میرے جرم کی تلافی کیا ہے انادل؟ دلہام نے اس کا سوال مکمل اگنور کرتے کیا تھا، وہ اس کی بہت اپنی تھی، لیکن فرحان کے معاملے میں وہ اپنے سائے پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ؟ انا کی بات میں دلہام کا ٹیمپر لوز کرنے لگی تھی، بنا جواب دیے وہ مڑنے لگا جب انا اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ رنس فرحان درست کہاں ہے دلہام بخت؟ آرجے کون ہے؟ وہ کئی سوال لیے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ دلہام نے اسے بازو سے کھینچتے اپنے بےحد قریب کیا تھا۔ کیا تم نے کبھی دلہام بخت کو سوچا ہے؟ وہ غصے میں منکارا تھا۔ دلہام بخت ہی تو ہے ہر جگہ، دلہام بخت تک کی رسائی چاہیے مجھے۔ وہ مضبوطی سے تن کے کھڑی ہوتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، وہی ان نگاہوں کے اکٹوپس کا شکار ہوتی فوراً نظریں چرائی تھی۔ تم اتنی بڑی ڈیلنگز کے لیے نہیں ہو جان دل، اس لیے اپنے چھوٹے سے مائنڈ کو اتنا اسٹریس نہ دو، جو چیزیں ہم جہاں پڑھی ہیں انہیں وہیں رہنے دو۔ بے ترتیب سے میرا دھم کرتا ہے اور تمہاری اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ ایک بار سب بگاڑنے کے بعد سدھار سکو، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ کتنا تم نے دلہام بخت کو بگاڑا ہے، اب سلجھانے کے وقت کئی کترائے پھرتی ہو۔ ایک بار پھر سے پٹری اسے اترا تھا، انا گہری سانس لیتے اپنے آپ اسے چھڑانے لگی تھی۔ طنز کے تیر بہت خوبصورتی سے مارتے ہیں آپ سینہ چھلنی کرنے والے، وہ لفظوں کو جب چبا رہی تھی۔ دلہام کا کہکواں بے ساختہ تھا، وہ بہت خوبصورتی سے اس کی توجہ کے دھاگے سمیٹ چکا تھا۔ شکریہ، اتنی بات تعریف سننے کو ملی ہے، اسی خوشی میں ایک روٹ ٹرپ ہونا چاہیے۔ 1 منٹ میں وہ پلان ترتیب دے چکا تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے کہ یہ سب کر کے آپ میری توجہ اصل مدعے سے ہٹا دیں گے تو غلط فہمی ہے، میرا سوال وہی ہے۔ انا نے پھر سے اسے ایک ہی نقطے پہ کھینچا تھا۔ میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ مال روڈ کے لمبے ٹریک پہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلوں، کہ تم میری یہ خواہش پوری کرو گی سنڈریلا؟ دلہام کی بات اسے خشک کھانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ انتہائی بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کرتے وہ پاؤں پٹکتے روم سے نکل گئی تھی۔ دلہام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کل آرجے انا میم سے کیفیٹیریا میں ملنے آ رہا ہے۔ موبائل کی پہ میسج کی آواز پہ سے سرسری نگاہ ڈالی تھی اور پھر غصے کی شدت سے مٹھیاں بھی جیت لی۔ ملنے دو، پھر تم اس پہ نگاہ رکھو گے، میں جانتا ہوں اسے جب تک خود سچ آنکھوں سے نہیں دیکھے گی سدھرے گی نہیں۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے تھے، اسے اندازہ ہوتا کہ انا نے اس کے ساتھ پارٹی پہ جانے سے کیوں منع کیا ہے۔
रम्स की आँख खुली तो कितनी देर वो छत को घूरते सोचने की कोशिश करती कि वो कहाँ थी, क्योंकि लकड़ी की छत के इसके लिए अनजान थी। बिस्तर की सख्ती से भी अंदाज़ा होता है कि इसका बेडरूम नहीं है। उसी शब के वाक़यात दिमाग में छाए तो वो झटके से उठ बैठी थी। खिड़की से चंद की आती सूरज की रोशनी से इसे दिन और रात का फ़र्क मालूम पड़ा था, जबकि तवज्जो इस रोशनी में हायल इसकी जानिब पुश किए शख्स की तरफ थी। "कहो कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई?" वो बिस्तर से तकरीबन कूदने के अंदाज़ में उठते तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी, जब उसकी आवाज़ पे मुड़ा था। रम्ज़ के कदम ज़मीन पर जमे थे। रात नींद अंधेरे में बंद वो सिसक रही थी। जब कोई अंदर आया था, वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि आने वाला कौन है, पर अब वो हौला सा वाज़ेह था। "अब भाई आप?" दिल अनजाने में ख़र्शों में धड़का था। जब दिल्हाम वक़्त आगे बढ़ते थे, शानों से थामा था और उसका रुख वापस से बेड की जानिब किया। अगले लम्हे छत से इसे अपने सर पे गिरती हुई महसूस हो रही थी, जहाँ दीवार पे कुछ चाहत भरे लम्हे रकम थे। दिल्हाम के हाथ इसे अपने कंधों पे धँसते हुए महसूस हो रहे थे। कोई इतना खुदगर्ज़ कैसे हो सकता है? रम्ज़ काँच के टुकड़ों से ज़ख्मी आवाज़ दर्द से पुर थी। "वह भाई, वो मैं। एक महरम रिश्ता था मूसा और तुम्हारे दरमियान। तुमने इसे भी अपनी गेम का हिस्सा बना लिया। कैसे?" "क्या इस रम्ज़ को मैं जानता हूँ जो मेरे दुश्मन के साथ मिलके मेरे अपनों का सुकून बर्बाद कर रही है, जो रिश्तों के साथ खेल रही है? क्यों रम्ज़, क्या हमारी मोहब्बतें काफ़ी नहीं थी कि तुम एक अनजान शख्स से भरोसा कर बैठी? मूसा की आड़ में आरजे रम्ज़।" दलहाम का साँस उखड़ा था। इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इन हकीकतों की आगाही ने इससे कितने गलत फ़ैसले नहीं करवाए थे, लेकिन एक अपने की खातिर वो अपने अपने बहुत से अपनों को तकलीफ़ नहीं दे सकता था। पर हाँ, तो तुम्हारी दोस्त है ना, बहन और भाभी, तुम इसके साथ। दिल्हाम ने आँखें मींची थी। वो निढाल सी इसकी गिरफ्त से निकलते ज़मीन पे ढेर हुई थी। दिल्हाम ने इस पे एक हकारत भरी निगाह डाली और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। एक लगा छुपी का मज़ीद खेल वो जारी नहीं रख सकता था। इसमें इतना हौसला नहीं बचा था। जब खटके की आवाज़ में निढाल से बैठी रम्ज़ ने सर ऊपर को उठाया, सपाट ज़हरीली मूसा इसके सामने था। वो चील की तरह इस पे चिपटी थी। तुमने किया ना ये सब, तुमने भाई को। मैंने मोहब्बत की थी रज़ पे भी, और जिनसे मोहब्बत की जाती है, इनका हर तरह अच्छा-सा सोचा जाता है। इसकी बात को दरमियान में काटते इसने खाने की ट्रे इसके सामने रखी थी। "खाना खा लें, आपकी बेहोशी का दौरानिया खतरनाक हद तक तवील रहा है।" वो नज़रें जो मोहब्बत लुटाए लगी थी, एक बार फिर से झुकी हुई थी, जिसे सारे गुनाह इससे सर्ज़ हुए हैं। रम्ज़ एक टके से देख रही थी। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। कल शब जो कुछ हुआ था, प्लान के तहत ही हुआ था। इसे हवेली से गायब किया गया था इसलिए। कमरे में आते ही इसे झटका लगा था। सामने वो चॉकलेटी कलर के जदीद तराश-खराश लिबास में मलबूस अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। दिल्हाम के लिए काफ़ी शौक था कि इसके साथ जाने के लिए रेडी थी। हाँ, इसने अना को मुतवज्जा करने को हंगार भरा था और जो शूज़ की स्ट्रैप लगाने के लिए झुकने लगी थी, चौंकते हुए सीधी हुई। सूट कोट बाजू पे टाले टाई को ढीला किए बज़माता थकन-ज़दा चेहरे के सामने था। अना ने इसे फिर से इग्नोर करते अपना काम करने लगी थी। दिल्हाम ने सोफ़े में तकरीबन धँसते हुए एक बार फिर से बग़ौर सर-पैर तक इसे देखा, जो निराली छप दिखा रही थी। "तुम शायद कहीं जा रही हो?" जाने की दिल तसल्ली चाहता था कि वो इसके लिए रेडी हुई है। "मैं नहीं, शायद हम कहीं जाने वाले थे।" वो इसे जताती हुई निगाहों से देखती एक बार फिर आईने में अपने सरापे का जायज़ा लेने लगी थी। वो हमेशा ही खुद को अप टू डेट रखने की आदी थी, लेकिन दरमियान का पीरियड इसने खुद से लापरवाही बरती थी और दिल्हाम भी इसे इतने दिन बाद खुले रंग व रूप में देखते हल्का-फुल्का महसूस कर रहा था। वो सोफ़े से उठते इसके करीब आया था। दिल्हाम को अपने इस कदर करीब देखते वो पज़ल से होने लगी थी, लेकिन ज़ाहिर किए बिना एक बार फिर से सुलझे बालों को मज़ीद सुलझाने लगी थी, जो कर्ल की सूरत में कुछ फ्रंट और बैक पे फैला रहे थे। वो प्रोग्राम तो शायद कैंसल हो गया था ना। दोनों हाथ सीने पे जमाए वो रफ़ुलिये में भी ग्रेसफुल लग रहा था। अना का दिल पूरी शिद्दत से बगावत करने लगा था। हसीन महबूब रूबरू जो था। फिर मैंने अपना मूड बदल लिया। वो बेफ़िक्री से शाने उचकाते वहाँ से हटने लगी, जब दिल्हाम ने इसके कंधों पर अपना तकरीबन वज़न मुंतकिल करते इसे जाने से रोका था। "अगर कोई और मूड बदल ले तो मुश्किल हो जाएगी।" तो मेरी अंदाज़ में गुफ्तगू सुनते अना सटपटाई थी। "मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा के हैंग कर दिए हैं।" अना ने खुद पर इसकी तवज्जो हटाना चाही थी। "हम कहीं नहीं जा रहे।"
वो उस पे कड़ों पानी फेरते हुए बोला था। अना के माथे में पसीने की नन्ही-मुन्नी बूँदें नमूदार होने लगी थी। वो उसका प्लान ख़राब कर रहा था। इसे आरजे से मिला तो पब्लिक प्लेस सेफ नहीं थी। आरजे को शक था कि धलाम इन्हें वॉश करेगा। तभी उसने अना को धलाम के साथ वो सेमिनार अटेंड करने का कहा था, जहाँ वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मसरूफ़ होते। अना से लापरवाह हो सकता था। मैं घर रहते-रहते काफ़ी फेड अप हो चुकी हूँ, कुछ चेंज चाहिए। इसने भोदा-सा बहाना पेश किया जिसे तलहाम ने सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। ओके, तो हम पार्टी घर में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। पैंट की पॉकेट से सेल निकालते एक हाथ में भी अभी इसके शाने पे जमा था। अन्ना के दिल का चोट इसके सोचने समझने की हसियात स्लिप कर रहा था, जबकि दिलहाम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रहा था। वेट अ मिनट अनातिल, मैं फ्रेश हो लूँ। हल्के से इसके रुखसार पे चुटकी काटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि अना अपनी रुकी सांसें बहाल की। दिल्हाम ने तो बाजी पलट दी थी। वो तेज़ी से अपने सेल की तरफ बढ़ी थी। अगर वो उसे फ़ोर्स करती तो शायद चौंकना हो जाता, इसलिए इसे एहतियात लाज़मी थी। एक टेक्स्ट आरजे के नाम छोड़ते इसने सेल ऑफ कर दिया था। बेचैनी से कमरे में टहलते हुए मुंसरिफ थी कि शायद वो आज सब जान लेती अगर कल रात इसने दिलाम को इनकार ना किया होता। दिलाम वापस आया तो गुमसुम भी थी, जब भी इसके सामने चुटकी बजाते इसने अना की तवज्जो अपनी जानिब मबरूज़ करवाई थी। मैं यहाँ हूँ। गीला टॉवल इस पे छालते हुए आईने के सामने ठहरा कंघी करने लगा था। दो शौला जवाला लोगों ने अचानक सकूना इख्तियार किया था, जो तूफान से पहले पुरसरार हबसदा खामोशी जैसी थी। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बताना चाहती हो मुझे? वो तसल्ली से इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। नहीं, सिर्फ आपकी गलतफहमी है। वो उसकी बात की नफ़ी करते हुए बोली थी, तभी दलाम का सैल बज उठा और दूसरी जानिब की बात सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराया था और कॉल ड्रॉप करते इसका हाथ थामा। वो किसी रूटीन की मानद इसके साथ खींची चली आई थी। लॉन में आते हुए पूरी तरह टटकी, जहाँ सरत रात की खूबसूरती को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। सहन में आगे जंगली गुलाबों की रविश में रंग बिरंगी रोशनियों के दरमियान सजी टेबल और उसके तरफ रखी गई दो कुर्सियाँ, टेबल के वस में जलती कैंडल और अतराफ में बर्फ़ की चादर उड़े ज़मीन जो रोशनियों में चमक रही थी, और इस चीज़ ने माहौल को मुकम्मल रोमानियत दी हुई थी। ये सब कब हुआ, इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो सका था। अपने ख़्याल में आगे बढ़ती अना का पाँव बर्फ़ की फिसलन पे रपटा था, जब ही साथ चलते लराम ने इसे शानों से थामे गिरने से बचाया था। मेरे ख़्याल से किसी भी बोरिंग सेमिनार को अटेंड करने से ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? दिल्हम ने दाँत तलब निगाहों से इसे देखा तो जो अभी तक इसकी गिरफ्त में थी। लेकिन की गुंजाइश कहाँ है माय लेडी, कम ऑन लेट्स हैव और डिनर। दिल्हम ने मेहरबानी की इंतहा करते इसे दोनों बाजुओं में उठाया, जबकि इसकी हरकत के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी बौखलाई। छोड़ो मुझे दिल्हम, बाकी क्या कर रहे हैं आप? वो खौफज़दा सी इधर-उधर देखने लगी कि आया कोई मुलाज़िम या मौजूद ना हो। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ डेट मनाने के चक्कर में हूँ। इसे चेयर पर बिठाते खुद इसके घुटनों के करीब बैठा था। अना के लिए किसी तलस्सुमाती दुनिया से कम ना था। दुल्हा मेहरबान नज़र आ रहा था, लेकिन इतना बदलाव इसे यकीन नहीं था कि वो वही दुल्हा बख्त है जो इस्लामी के ऐवान में बड़े क्रॉफर्ड और तबद्दुर से जमा मौजूद होता था। एक ख्वाहिश पूरी करो कि तुम मेरी आज अनादिल। वो उसके हाथ थामे पूछ रहा था। वो एहतजाज जो अभी किया जाना था इसकी गंभीर आवाज़ में खो गया था। सर बखुद अस्पात में हिला तो इसने अपने दिल की बगावत पे गुस्सा आया था। क्या आज के दिन तुम सब इख्तिलाफ भुला के इतना याद रख सकते हो कि मैं दिलाम बख्त अनादिल का दिल हूँ और सामने मौजूद लड़की दिलाम बख्त की अनादिल है। भारी आवाज़ माज़ी को दबिश चादर उड़ाने की कोशिश लिए से मोहब्बत भरी कुछ साजिशों पे उकसा रही थी। अना की उठी बल्कि झुकी थी। इसने खुद को कमज़ोर पड़ने पे सर्जिश की थी, पर दिल्हम बख्त जाने कौन से जुदाई मंतर फूँकते इसे अपने शहर में लेने लगा था। वो ज़मीन से उठते इसके बराबर चेयर खींचते बैठा था और सूप निकालते इसे सर्व करने लगा। वो खामोशी से इसकी हर बात मान रही थी, हर अमल में इसका साथ दे रही थी, जबकि दिल्हम की निगाहें इसे आज अंदर तक खोंच रही थी। क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो? सूप में खामखा स्पून घुमाती अना को बखौर देखते दिल्हम ने कहा, तो हैरानी से इसे देखने लगी थी। भला ये कैसी फरमाइश थी? मैं भला अनातिल, इसकी बात दरमियान से उचकते दिल्हम ने इसे पुकारा था। वो सर झुका गई थी जब स्नोफॉल ने हल्की सी फुहार दिखाई थी। दिल्हम, वो मैं मुंतज़िर हूँ अनातिल। वो जानता था कि अभी वो कौन-सा बहाना करने वाली थी। अना बुरी तरह बज़ल होने लगी थी, जो एक हाथ को दूसरे हाथ में तकरीबन ज़ब्त करते अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी।
दिल्हाम की गहरी नज़रों से बचने को उसने इसकी फरमाइश पूरी करने की ठानी थी। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दुखने लगी हैं, देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी हैं, रहूं उम्र भर मैं तेरी तो तू मेरा। वो आंखें बन के गुनगुनाई थी, जबकि तस्वुर में दो मुस्कुराती निगाहें दिल को जकड़ने वाला जादूगर शख्स था जो इस वक्त रूबरू था। वहीं दिलाम ने हौले से इसके हाथ दबाए तो वो छट से आंखें खोले इसे देखने लगी थी। रिमझिम सावन की बूंदें तो हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। अना की बात में धलाम ने इसके हाथों को लबों से लगाते गोया वाकई इसकी सांसों का जिम्मा लिया था। मैकेनिक अंदाज में इसका हाथ दिल्हाम के चेहरे को छूने लगा था। दिल्हाम मसरूर हुआ था। वो आज भी इससे इतना प्यार करती थी, वो आज भी इसकी असीर थी। इसकी आंखों से एक मोती टूट कर बिखरा था जो वो फौरन से उंगली की पोर्स पे समेट गया था। मेरे लबों से आए कभी भी हो नाम पहला तेरी है मेरी जबान पे, चाहे जमाना मुंह मोड़ ले पर हर पल तू रहना मेरा बस ये दुआ है। दिल्हाम फतहमंदी से इसे देख रहा था जो जंग मोहब्बत से जीती जा सकती थी, इसे खामोखा की नफरत आना की सूली पे लटकाया गया था। अनादिल खामोशी का दौरान यह तवील हुआ था जब वो सिसकारी भरते इसके शाने पे सर टिका गई थी। दिल्हाम ने मजबूती से इसके एक इसार बांधते सफ़ेद रुई को उसके बालों से हटाया था, जबकि वो जाने किन किन जज्बों में घिरी अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। अनातिल तिल्हाम ने लब इसके लबों पे टिकाए हौले से इसे पुकारा था, जबकि अना का रुआ रुआ समात बना था। सब ठीक हो जाएगा। ये तसल्ली क्यों और किस लिए थी वो समझ नहीं पाई थी, फिर भी सर अस्पात में हिलाया था। कुछ परखार सी राहें हैं जिसके काटने पलकों से चुनने पड़ रहे हैं। अपनी ठोड़ी इसके सर पे टिकाया, इसके गिर तंग हिसार बांधे हुए खोए खोए अंदाज में बोला था। जब अना ने सर उठाया था तलस्सुम टूटा था। 3 साल तक कांटों को झेला है, गुलाब की खुशबू मुयस्सर होने से पहले किसी ने मस्त आड़ ली है। वो एक एक लफ्ज़ चबाती तल्खी से बोली थी। कुछ देर वो उसकी आंखों में उमड़ते मुख्तलिफ रंगों को देखता रहा था। ये कलर तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इस मौसम की सख्ती को झेलने को ये लिबास नाकाफ़ी है। चलो ठंड बढ़ रही है। इसकी आंखों में कुर्चियों की चुभन वो अपने दिल पे महसूस कर रहा था, तभी इसका हाथ थामे खड़ा करने लगा। हर चीज़ एकदम से मधुम होने लगी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ देर अकेला रहना चाहूँगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़। वो अपने ख़ौल में समेटी थी। दिल्हाम को इसकी इजाज़त तलब करने का अंदाज़ खूब भाया था, तभी अपनी गर्म जैकेट इसे उड़ाते अंदर की तरफ बढ़ गया था। अंदर दाखिल होते एक बार फिर इसे मुड़कर इसे देखा तो जो दिल्हाम की तरफ ही देख रही थी। अचानक नज़रों के तसादुम पे वो फ़ौरन से रुख मुड़ गई थी। इसकी अदा दिल्हाम के लबों पे खफ़ीफ सी चंबिश पड़ गई छोड़ गई थी। अपने कमरे में आते से खिड़की से भारी कर्टन सरकाए थे और नज़रों का महवर इसे बनाया जो बरकीर कमकों में उदासी शहज़ादी की मानद बैठी थी। वो इसे वक़्त देना चाहता था। पहली बार दिल्हाम ने इसे आज़ाद छोड़ने का फ़ैसला किया था ताकि वो खुद तज़ाबी के अमल से गुज़रे। सफ़ेद रूई ने रफ़्तार पकड़ी थी। रात के गहरे साए पड़ते देख के वो इसे खुद से बेगाना देखते वो मज़ीद सब्र नहीं कर पाया था, तभी कमरे से बाहर आया था। वो रूठी महबूबा मौसम की सख्ती से बेपरवाह शाहबलूत के दरख्तों को गोदने में मसरूफ़ थी। एक नज़र से देखते हुए किचन में आता, कितने वक्त बाद इसने खुद से कॉफ़ी बनाई थी। एक हाथ में अपना कॉफ़ी का हाथ, दूसरे हाथ में इसके लिए कॉफ़ी से लबरेज मग पकड़े इसके पास आया था। अपनी सोचों में गुम ना अपने इंतहाई करीब आहट महसूस करते सर उठाए आने वाले को देखने लगी थी। कॉफ़ी। दिल्हाम ने कॉफ़ी का मग आगे करते कहा था। वो कुछ देर इसे देखते रहने के बाद खामोशी से मग थाम गई थी और उसे भरते गहरी सोच में डूबी थी। क्या मैं समझ लूँ कि हम दोनों के दरमियान इस रिश्ते ने अपनी गुंजाइश बना ली है? दिल्हाम की नज़रें इसे अंदर तक खोज रही थी। अनन ने आँखें सिकुड़े से घूरा, फिर से कॉफ़ी के मग पे उँगलियाँ फेरने लगी थी। दिल्हाम ने एक गहरी सांस हवा की सूँघ ली और चेयर चेयर पर खुद को ढीला छोड़ा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अना को इसका अंदाज़ साफ मज़ाक उड़ाता लगा था। बातें छुपाना मुझे कहाँ आता दिलाम्बा, ये काम तो सिर्फ़ आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अना के तंज को महसूस करते घनी मूँछों के साए तले लब मुस्कुराए थे। कहाँ छुपाना आया तुमसे ये राज हँसती कि हमें तुमसे मोहब्बत है। वही गैर संजीदा अंदाज़ जो अना को गुस्सा दिलाने को काफ़ी था। जिस दिन मुझे सच्चाई मालूम पड़ी वो किसी किरदार के मुजरिम और गुनहगार ठहरे, वो दिन आखिरी होगा मेरी आपकी लाइफ़ में। वो उसे धमका रही थी, दिल्हाम महफूज़ हो रहा था। कॉफ़ी पीते वो उठ खड़ी हुई थी, दिल्हाम भी इसके पीछे आया था। कॉफ़ी के लिए थैंक्स तो कहती जाओ।
वो छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। पीछे मुड़ते अनाने से ज़रा सी आँखें दिखाई और मग लाउंज में रखते अंदर की जानिब गायब हो गई थी। वो बेडरूम में आया तो अना बिस्तर झाड़ रही थी। इत्तेफ़ाक़ आने वाले दिन और अना से असाब शगन बहस व मुबahसे के बाद वो सोना वो सोना चाहता था, तभी अपनी मखसूस जगह सँभाली थी। अना का दिमाग एक बार फिर से कल होने वाली आरज़ी के मुलाकात के प्लानिंग करने में मसरूफ़ था। अपनी सोचों में खोए वो आरज़ी बार खड़ी करना भूल चुके थे। माहौल में छाई पुरसरार खामोशी को अना की तरफ होती दिलहम की पेशकदमी ने तोड़ा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अना। इसकी तरफ रुख मोड़ते दिलहम का लहज़ा हद दर्जा हलावत लिए हुआ था। वो हैरानी से इसे देखने लगी, फिर इसकी आंखों में चमकते शफाफ जज्बों ने अना को मोम किया था। ये तो अज़ल से तय था कि औरत मर्द के मीठे रवैयों के आगे हारती आई है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर तुम्हें मालूम ना भी पड़े तो मेरे ख्याल से तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड बिलीव मी, मैं सही वक्त पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पे। दिलहम ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, इसका सर अपने शाने पे मुंतकिल किया था। दिल की हालत अजीब थी। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि चाहते क्या हैं। भरोसा ही तो नहीं करना चाहती। अगर एतबार टूट गया तो मानो मैं टूट जाऊँगी। अब के बाद शायद मैं सँभल ही ना पाऊँ। दिलहम मोहब्बत से नफ़रत का सफ़र बहुत थका देने वाला है। इसकी बात सुनते दिलहम को तासुफ़ ने आ घेरा था। मतलब आज भी वो इसी मुकाम पे थी। दिलहम की हर पेश रफ़्त फ़ुज़ूल थी। पता नहीं क्या अनाप-शनाप सोचती रहती हो तुम। तुम्हारी प्रॉब्लम इम्र वक़्ती वो जा चुकी है। मेरा नहीं ख़्याल कि तुम्हें अब इस रिश्ते को आगे लेके जाने में कोई मसला होगा। दिलहम की बात सुनते अना का दिल ज़ोर से धड़का था। वो रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कर रहा था और बाहर कर रहा था। दिलहम बग इससे हारना चाहता था। फ़ुज़ूल कुछ नहीं सुनना मुझे। वो रुख मोड़ने लगी थी जब दिलहम ने इसे खुद में भेजा था। इतनी गुर्बत इसे पिघलने लगी थी। ये कोई पहली बार नहीं होता कि वो दिलहम भग के करीब थी, पर अंदाज़ बदले थे, पर हिद्दत हाथों की गर्मी बहुत से मायने बता रही थी। शुरू आपने किया। दिलहम बग वो आँखों में शिकवा को जहाँ आबाद करते बोली थी। जब दिलहम ने इसकी पलकों को अपने लबों की तासीर देते राहत बख्शी तो इसके होंठ जैसे सिल से गए। चेहरा सुर्ख पड़ा था इस हरकत पे। अना का सुर्ख पड़ता चेहरा दिलहम को बिल्कुल बेबस कर चुका था। खामोशी कुछ भेद भरी बातें करने लगी थी। वहीं दिलहम बग के हौसलों की उड़ान अना को ढेर करने लगी थी। वो ज़्यादातर इसके बेबाक जज्बों पे बंद नहीं बांध सकी थी। इसने भी ये बाजी हारने का फैसला किया था। वो मोहब्बत को सुरखरू करना चाहते थे जो कब से इनके दरमियान मज़लूम सी पस्ती चली जा रही थी। पहले दिलाम और फिर मूसा का इसे खाने देने का अंदाज ऐसा था कि वो खुद को किसी कैद में महसूस कर रही थी। हलक में कांटे उभर आए थे, तभी इसने एक नज़र खाने को देखने के बाद रुख मोड़ लिया था। मूसा जब दोबारा आया तो वो ऐसी ही बैठी थी, पर इसे देखते तमाम हंसें बेदार हुई थी। मैंने ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए किया था मूसा, और तुम ही मुझे इस रमदान में ले आए हो। रम्ज़ के लहजे में दुख सा था। जिस शख्स की खातिर सारी हदें तोड़ी थी, आज इसने ज़िंदगी से धूल छोड़ा था। अब आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रंजबी, हकीकत जो है सामने है सब, और ना मुझसे झूठी मोहब्बत जताने की ज़रूरत रही है अब। वो उसके सामने से खाना उठाने लगा, लफ्ज़-ए-लफ्ज़ इसके दिए गए ज़ख्मों के नासुर में ज़हर बन के डूबा था। वो जाने लगा तो रब से इसका बाजू थामा था। मैं बहक गई थी, लेकिन मूसा तुम्हें मेरी मोहब्बत की दीवानगी पे एतबार करना होगा। उसने इतराफ़ किया था, अंदाज़ में आज भी शिद्दत पसंदी थी। किसी की मोहब्बत और ज़िंदगी को सूली पे लटका के कौन-सी मोहब्बत हासिल की जाती है। और बिलफ़र्ज़ ऐसा था, लेकिन आपने मेरी नहीं रहमान जिलानी की मोहब्बत में इतना बड़ा दाँव खेला है, ये सभी जान चुके हैं हम। मूसा के अल्फाज़ किसी चाबुक की तरह से लगे थे, बेएतबार करते, बदकिरदार साबित करते हुए। अगले लम्हे एक थप्पड़ मूसा के चेहरे पे पड़ा था। तुम मेरे किरदार पे उँगली उठा रहे हो, तुम मूसा जिसकी खातिर मैंने अपनी जान अज़ीज़ बहन को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, और अपने लफ्ज़ों की इस्लाह कर लें, मेरी नहीं सिर्फ़ अपनी नस्वानी ख्वाहिशात के लिए। जो शख़्स अपने सगों का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। रंसवी जिसने भाइयों का एतबार तोड़ डाला, भला मैं इस पे एतबार करता भी तो कैसे, और अब करूँ भी तो क्यों। रम्ज़ के थप्पड़ ने मूसा के अंदाज़ में तेज़ी भर दी थी। वो जो इसे दस्ते गिरेबान थी, इसकी गिरफ्त मूसा के कॉलर पे ढीली पड़ी थी। इसे पीछे हटता देखकर मूसा भी वहाँ से उठ गया था। जो शख़्स अपने सगों का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। जो शख़्स अपने सगों का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। इसकी समातों में मुसलसल एक ही फ़िक्रें गिरदान हो रही थी। दोनों कानों पे हाथ रख के चीखने लगी थी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार करना होगा मूसा। पर इसकी सदाओं पे कान धरने वालों ने अपने दिल पत्थर के कर लिए थे। मूसा दूसरे कमरे में अपने रुखसार पर हाथ रखे बैठा था, जबकि आंखें नम थी। मोहब्बत से दबादारी के आसान नहीं थी, पर वो लड़की इस काबिल कहाँ थी।
इस दिन जब उसे हॉस्पिटल लेके गया था, इसके कुछ ब्लड सैंपल लिए गए थे। रूटीन के टेस्टों के दरमियान हीमोग्लोबिन में भारी तादाद में ड्रग्स की मौजूदगी ने जहां डॉक्टर्स को चुकाया, वहीं मूसा पे मुनकशिफ होने वाला राज गहरे सन्नाटों में ले गया। दिलहाम जो पहले इसी खोज में लगा चुका था कि घर का कौन सा फर्द फरहान की मेडिसिन बदल रहा है, और साथ में यकदीगर बात होने वाकयात की खोज में मसरूफ मूसा ने कुछ शकू व शबहात की बुनियाद पे रंज पे नज़र रखी थी, जिसके नतीजे इस वक्त भयानक साबित हुए जब इसे आरजे से मिलते देखा था। बात यहीं तक नहीं रुकी थी, वो बाकायदा आरजे की टीम का हिस्सा बन चुकी थी, जो मुख्तलिफ लोगों के सप्लायर के तौर पे काम कर रही थी। दिलहाम वक्त के सामने किया जाने वाला एतराफ़ मूसा की शामत लाया था, और इसने अपना गुस्सा इस पे उतारा था, भला अपनी मासूम बहन के साथ भी कीचड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन फरहान की बेहतरी की तरफ जाती तबीयत, जहाँ पे फरहान से राब्ते में रम्ज़ का नाम और निशान नहीं था, जो इसे हिप्नोटाइज़ करते आरजे की मदद से भेजी जाने वाली मेडिसिन खिलाती रही थी। इन शकों को मज़ीद पुख्ता किया था। रब ने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक मायमा ही था। इसका सर दर्द की शिद्दत से फटने लगा था। इस लड़की की खातिर वो बदनामी मोल किया था, जो दिलहाम भाग की तरफ से इसकी ईमानदारी का तोहफ़ा थी। और इसने भी इस बदनामी को कबूल किया था, क्योंकि इसने गफलत बरती थी। इसे रम्ज़ के लिए हायर किया गया था, और वो इससे गफलत बरत किया। इसका दिल चाह रहा था वो हर चीज़ तहस-नहस कर दे। अपनी पेशानी पर नरम उँगलियों का लम्ब महसूस करते इसने झट से आँखें खोली, तो वो तर आँखें लिए इसकी जानिब ही देख रही थी। क्यों किया ऐसा रम्ज़ पे भी? इसका अंदाज़ शख़्स ख़ोरदा था, जाने कैसे वो सवाल करने की गुस्ताख़ी कर बैठा था, जो इसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसे सर झुकाए कहा था, जिसकी आँखों में से अश्क लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। मूसा ने बग़ौर इसे देखा। क्यों? वज़ाहत नहीं चाहता था, पर बेसाख्ता बोल उठा था। झुका सर मज़ीद झुक गया था। मूसा ने इसे ताज्जुब से देखा, मतलब कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो कुछ नहीं बताने वाली, और ज़ोर-ज़बरदस्ती वो कर नहीं सकता था, क्योंकि दिलहाम ने इसे रम्ज़ की निगरानी के लिए रख छोड़ा था। एक दो बार इसने दिलाम को वहाँ देखा था। इर्द-गिर्द बर्फ से ढके पहाड़ों से वो ये अंदाज़ा कर पाई थी कि वो किसी हिल स्टेशन पर ही है, पर कहाँ, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इस रात दिलाम इसके रूम में गया था, और भारी मिक़दार में क्लोरोफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते इसे बेहोश करते मूसा को इसे वहाँ से ले जाने का कहा था। मूसा इसे लिए दिलाम की बताई जगह पर आया था, जो मरी में ही थी, और इसके बाद खुद घर से निकला था। इन दोनों को यकीन था आरजे रम से राब्ता कटने की सूरत में ज़रूर दिलाम और अना की तरफ रुख करेगा। जिस शख्स से फरहान का पता बता सके, वो इस तक रसाई ज़रूर हासिल करेगा, और ऐसा ही हुआ था। अब वो आरजे की अगली चाल के मुंतज़िर थे। मूसा इस वक्त कॉल पे बिज़ी था, जब रम्ज़ की आमद पे चौंका। जा घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मम्मा मुझे वो ला दो मूसा, मैं मर रही हूँ। सर्दी की शिद्दत से काँपती रम्ज़ भिखारी बन के इसके सामने थी। मूसा को एक लम्हा लगा था इसकी ज़रूरत समझने में। इसके सर की रगें गुस्से की शिद्दत से तन गई थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो दो टूक जवाब देते बोला था। तो मैं खुदा का वास्ता मूसा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत। मैं जानती हूँ तुम ला सकते हो, तुम ला दो प्लीज़। वो इसके बिस्तर के करीब बैठते इसके हाथ थामते मुल्तजाना अंदाज़ में बोली थी। इसकी आँखों में बेचैन तो आवाज़ में एक तकलीफ़ सी थी। मूसा ने इससे नज़रें चुराई। देखें बीबी जी, मूसा, वो इसका चेहरा दोनों हाथ में थाम गई थी। इसकी गुर्बत कमरे की तन्हाई, रम्ज़ का टूटता बिखरता वजूद मूसा ने बेइख्तियार से खुद से लगाया था। कहीं न कहीं इसकी जो इसके लिए जो मोहब्बत थी, वो इसकी तकलीफ़ सहन नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे ला दोगे ना मूसा, मुझे सुकून मिल जाएगा। वो बच्चों की मानन ज़िद्दी अंदाज़ में बोली। मूसा ने बेबसी से इसे देखा था। अगर आप मुझे बताएँगे आरजे क्या चाहता है, आपने आरजे का साथ क्यों दिया, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। वो उसे बाहों के घेरे में लिए हुए बोला था। रब्ज़ ने अजनबी नज़रों से उसे देखा और पीछे हटने लगी थी। जब मूसा का टेम्पर लूज़ हुआ, बर्दाश्त की हद ख़त्म थी, तभी दरवाज़े से खींचता करीब किया। जब तभी दोबारा से खींचता करीब किया। आप मुझे इस हद तक जाने पे मजबूर करें कि मैं अदब व आदाब की हदूद से बाहर हो जाऊँ। तुर्क आँखों की हिब्बत रम्ज़ को बौखला रही थी। बताएँ सच क्या है रम्ज़ बीबी? मूसा की सख्त गिरफ्त बर्दाश्त से बाहर हुई, तो लबों से सिसकी बरामद हुई थी। वो झंझलाते हुए इसे छोड़ते कमरे से निकल गई थी। रम्ज़ की खामोशी इसे मुजरिम बना रही थी, वहीं मूसा को भी मज़ीद गुस्सा दिला रही थी।